Hello students, welcome back. Chapter number 13 amines. Today I will discuss chemical properties of amines. We have already started with this topic and today I will continue with remaining properties of amines. See, the reactions left out are alkylation, acylation, carbylamine reaction, reaction with nitrous acid, Hinsberg's test and electrophilic substitution reaction. So let us see these reactions one by one. Our first reaction is alkylation. Okay, so this reaction we are doing after the basicity of amines. The first chemical property was basicity of amines, and after that we are doing now the second reaction, which is alkylation. See, amines undergo alkylation on treatment with alkyl halides to form amines of higher class. So what is happening here? amines किसके साथ react करेंगे? alkyl halides के साथ react करेंगे to form amines of higher class. सी NCERT में इसकी रिएक्शन नहीं दी हुई है बिकॉज ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में. सी आई विल टेल यू. सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ मिथाइल एमीन CH3NH2. ओके, किसके साथ हमें रिएक्ट कराना है? एल्काइल हैलाइड के साथ. तो सपोज इफ वी टेक CH3Cl. नाउ व्हाट विल हैपन? यहाँ से ये H और Cl रिमूव हो जाएगा माइनस HCl. ओके, HCl की फॉर्म में. सो व्हाट वी विल गेट एज प्रोडक्ट? CH3 होल ट्वाइस NH. सो व्हाट इज हैपनिंग? एल्काइल ग्रुप इज एडिंग. Okay, so amines undergo alkylation on treatment with alkyl halides to form amines of higher class. Now again if we take more alkyl halide, it means alkyl halide अगर excess में है तो again the same thing will happen. What will happen? This H, see this H and Cl will remove as HCl, and what we will get? CH3 whole thrice N. Now again if we take CH3Cl, what will happen? Tetramethyl ammonium chloride will be formed. CH3 whole 4N plus Cl minus here. Okay, so this was the reaction for alkylation. It is not given in NCERT, तो आप ये लिख सकते हैं reaction. Let's move on to second reaction, acylation. Okay, now acylation में क्या होगा? एसाइल ग्रुप ऐड होगा और एसाइल ग्रुप आप लोगों को पता है COCH3 group is known as acyl group. See what will happen? Aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with, किसी से भी हम react करा सकते हैं, acid chlorides, anhydrides and esters by nucleophilic substitution reaction है ये. हाइड्रोजन एटम ऑफ एमीन इज रिप्लेस बाय एसाइल ग्रुप. एमीन का एक H रिप्लेस हो जाएगा और कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? एसाइल ग्रुप. सी चिल्ड्रन, इसमें लिखा है कि खाली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स ये रिएक्शन देती हैं. टर्शरी एमीन ये रिएक्शन क्यों नहीं देंगे? बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. उनके पास हाइड्रोजन एटम नहीं होता जिसको हम रिप्लेस कर सकें. Now the product formed by this reaction are known as amides. Okay, the reaction is carried out in the presence of a stronger base like pyridine. Since amines खुद base हैं तो हमें एक stronger base चाहिए like pyridine. क्या करेगा वो? It will remove HCl formed and shift the equilibrium to right hand side. Since it is a reversible reaction, तो जो HCl बनेगी pyridine उसके साथ combine कर देगा ताकि जो हमारी reaction है right hand side को shift हो जाए according to Le-Chatelier's principle. Now when amines react with बेंजोइल क्लोराइड, इट इज़ नोन एज बेंजोइलेशन. अगर यही स्पेसिफिक रिएक्शन में एमीन किसके साथ रिएक्ट करें? बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? C6H5. C6H5 ये क्या है? फिनाइल रिंग है. COCl इज नोन एज बेंजोइल क्लोराइड. तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिकली उस केस में बेंजोइलेशन बोलेंगे. सो नाउ लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ एसाइलेशन. सी चिल्ड्रन, इसमें क्या हो रहा है? इथेनामीन दिया हुआ है. दिस इज इथेनामीन, दिस वन. इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे
CH3COCl, दिस इज CH3COCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये इंटरमीडिएट बन रहा है। आप इसको बेशक से छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नहीं लिखें। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखाना है, -HCl, H और Cl रिमूव करना है। सी चिल्ड्रन, दिस H, एमीन का एक H और Cl रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ HCl। रिमेनिंग आप अटैच कर सकते हैं C, ये बच जाएगा COCH3। आप इस C2H5NH के साथ अटैच कर सकते हैं टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। HCl रिमूव करके इंटरमीडिएट आप छोड़ सकते हैं, यू कैन स्किप राइटिंग इट। नाउ अगेन सी, ये क्या है आपकी 1 डिग्री एमीन के साथ है। नाउ दिस इज 2 डिग्री एमीन एन इथाइल एथेनामीन। सी द हियर 2 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर एंड 1 H इज देयर। तो ये कौन सा हुआ, 2 डिग्री एमीन। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है, H और Cl को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ HCl एंड यू कैन डायरेक्टली अटैच दिस एसाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप टू द एमीन, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्या है, ये जो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है ये किसके साथ है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाई गई है। अब इसमें आप क्या करेंगे, यू कैन रिमूव दिस ग्रुप, सी दिस विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ CH3COOH और अटैच क्या होगा, एसाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप विल बी अटैच टू एमीन। ओके चिल्ड्रन, नाउ बेंजोइलेशन क्या होता है, जब हम बेंजोइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, C6H5COCl इज नोन एज बेंजोइल क्लोराइड। इसमें भी क्या होगा, व्हाट यू हैव टू रिमूव, HCl, ये इसका एक H और ये Cl रिमूव हो जाएगा। इसमें क्या अटैच होता है, COC6H5 ग्रुप अटैच होता है। ओके, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन मिथाइल बेंजेनामाइड। ओके, ये सारे क्या हैं, एमाइड्स हैं। ओके, सी एमाइड 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 एंड बेंजेनामाइड। और बच्चे इसका नाम आपको लर्न रखना है एसिटानालाइड। दिस इज यूज्ड इन योर कन्वर्जन, कई बार कन्वर्जन में ये वाली रिएक्शन आती है। सो दिस वाज अवर सेकेंड रिएक्शन, एसाइलेशन। नाउ लेट अस सी अवर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बोलेमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। और सिंस ये टेस्ट का नाम आ गया तो ये टेस्ट हम यूज़ करेंगे डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस में। ओके, और ये वाला टेस्ट हम डिस्टिंग्विश करते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स एंड बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। बिकॉज ये जो टेस्ट हम पढ़ रहे हैं कार्बोलेमीन रिएक्शन, ये खाली क्या देते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स देते हैं। ये रिएक्शन 1 डिग्री वाले देते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएट करना है 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, तो आप ये वाला टेस्ट लिख सकते हैं। क्या करते हैं हम इस टेस्ट में, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोलिक potassium hydroxide form isocyanide which is a FOL, not false, यहाँ पे ये wrong है, FOL spelling, FOUL, which is a FOL smelling substance. Now see what we are doing, ये हमने 1 डिग्री एमीन लिया, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराएंगे, हमें हीट करना पड़ता है, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है RNC which is known as alkyl कार्बोलामीन। ओके, दिस इज नोन एज एल्काइल कार्बोलामीन भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड। आपको पता है NC ग्रुप को हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, +3 KCl और +3 H2O बनेगा। अब नाउ दिस प्रोडक्ट इज फोल स्मेलिंग। फोल स्मेलिंग मीन्स इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ओके, सो यू कैन यूज दिस एज ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। Now secondary and tertiary amine do not show this reaction, and so this reaction is used as a test of primary amines. Very important test. Okay, so you need to remember this test. Suppose कोई आपके पास example आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, distinguish between ethylamine and diethylamine, then you can write this test. यहाँ कोई क्वेश्चन आता है एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन के बीच डिस्टिंग्विश करिए, तो आप कौन सा टेस्ट लिख सकते हैं, ये वाला टेस्ट लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज कार्बोलेमीन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट रिएक्शन,
which is reaction with nitrous acid. Again children, this is also a test और ये हम distinguish करने के लिए use कर सकते हैं between aliphatic and aromatic amines. Okay, ये वाला जो टेस्ट है हम aliphatic और aromatic amines को distinguish करने के लिए use कर सकते हैं because ये दोनों differently react करते हैं. Now see children, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड किसको बोलते हैं? HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड. टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस एंड अल्कोहल. सी, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, इसमें जो ये नाइट्रस एसिड है दैट इज़ वेरी अनस्टेबल, तो हम इसको हम इन सीटू प्रिपेयर करते हैं. इन सीटू मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन. और कैसे प्रिपेयर करेंगे? NaNO2 प्लस HCl के साथ. ओके, नाउ सी प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, ये प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके पहले एक इंटरमीडिएट बनाएगा विच इज़ वेरी अनस्टेबल. ओके, ये अनस्टेबल होता है एंड इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म अल्कोहल एंड नाइट्रोजन. Now see, aromatic amines react with nitrous acid at low temperature to form diazonium salt, and the reaction is known as diazotization. Now this is what aromatic amine, and this is very important reaction which is known as diazotization जैसे लिखा हुआ है. लेकिन आपका अब ये सिलेबस डिलीटेड है, आपका जो डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट है इस चैप्टर का, इसके बाद वाला पार्ट वो डिलीटेड है. अदरवाइज ये रिएक्शन उसमें भी हम पढ़ते हैं डाइजोटाइजेशन की. ओके, इट इज़ नोन एज BDC. द प्रोडक्ट फॉर्म को हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. और इसकी ये कंडीशन, ओके, इट टेक्स प्लेस एट वेरी लो टेम्परेचर. या तो आप 273 to 278 केल्विन लिख सकते हो, या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इसी को लिख सकते हो. ठीक है, वैसे तो ये वाला पार्ट डाइजोनियम सॉल्ट वाला डिलीटेड है. ओके, तो ये दो रिएक्शन है. अब क्या है ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या है? इट कैन रिएक्ट विद बीटा नैप्थॉल एंड प्रोड्यूस स्कारलेट रेड डाई. अगर हम इसकी रिएक्शन, इस BDC की रिएक्शन किससे कराएं? बीटा नैप्थॉल से कराएं तो ये स्कारलेट रेड डाई प्रोड्यूस करता है. सो इट कैन बी यूज एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स. नाउ सी, अब इसमें वैसे तो 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की भी रिएक्शन है, बट इट इज़ नॉट गिवन इन NCERT, so we can leave that. So this was with nitrous acid. Now let us see our next reaction. Reaction with aryl sulfonyl chloride. Okay, this इस अगेन अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. और कहाँ काम आती है ये? अगेन डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन में काम आती है, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन में. अब डिस्टिंग्विश टेस्ट में, नाउ सी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट, इसीलिए इसको हम हिंसबर्ग्स टेस्ट भी बोलते हैं. रिएक्ट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स. अब इसमें क्या है बच्चे, ये वाला जो पर्टिकुलर टेस्ट है विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड और हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हम तीनों को डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन, इसमें हम तीनों पढ़ेंगे कि तीनों एमीन्स डिफरेंट वे में रिएक्ट करती हैं. 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन डिफरेंट वे में रिएक्ट करती हैं. तो इसको हम डिस्टिंग्विश के फॉर्म में तो यूज़ करते ही हैं इस रिएक्शन को, प्लस सेपरेशन में भी यूज़ करते हैं. ये वाली रिएक्शन सेपरेशन ऑफ ऑल द 3 एमीन्स में भी काम आती है. नाउ लेट अस सी कैसे रिएक्ट करते हैं. ओके, अब सी फर्स्ट पार्ट, द रिएक्शन ऑफ benzene sulfonyl chloride with primary amine yields N-ethyl benzene sulfonyl amide. Now this ये क्या है? C6H5SO2Cl है. ओके, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है. इसमें आपको सिंपली क्या करना है, ये HCl रिमूव करना है और ये अटैच कर देना है. नाउ ये जो प्रोडक्ट बना N-ethyl benzene sulfonamide, इट इज soluble in alkali. तो ये डिफ्रेंसिएशन है. अब ये एल्कली में सॉल्यूबल क्यों है? अगर आप ये वाला ग्रुप देखें तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन भी और
H का बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा. सो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में बिहेव करता है एंड इट कैन कम आउट एज H+. See, the hydrogen attached to nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to presence of strong electron withdrawing sulfonyl group. Hence, it is soluble in alkali. तो ये क्या करेगा, ये जब हम पहले रिएक्ट करेंगे एक clear solution of aqueous KOH which on acidification with HCl gives soluble. ये soluble है होता है alkali में. So this is the case with primary amine. लेकिन now let us see secondary amine. Now in case of secondary amine, अब हम किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन में भी हमें वही चीज़ करनी है बच्चे, ये HCl रिमूव करना है और इसको अटैच कर देना है. नाउ इसमें जो एमाइड बनेगा, सिंस NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन. अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं. सो इट इज़ नॉट एसिडिक एंड हेंस इनसॉल्यूबल इन एल्कली. सो ये वाला जो कंपाउंड बनेगा विल बी इनसॉल्यूबल इन एल्कली. ये हो गई 2 डिग्री की रिएक्शन. ना 3 डिग्री एमीन डू नॉट रिएक्ट. 3 डिग्री एमीन रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज यू कैन सी उनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता. This property of amines reacting with benzene sulfonyl chloride in different manner is used in distinction of primary, secondary and tertiary amines मैंने आपको बताया, and also for separation मैंने आपको बताया. So what you need to remember is when you will write कि 1 डिग्री एमीन जो होगा एक क्लियर सॉल्यूशन ऑफ aqueous in aqueous KOH is formed. Now see children, हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होगा, जो 1 डिग्री एमीन है a clear solution in aqueous KOH which on acidification with HCl gives soluble material, and 2 degree a PPT which is insoluble in KOH solution. You can write, and 3 degree will not react due to absence of replaceable hydrogen atom. So this was reaction with aryl sulfonyl chloride, or we can say that this was Hinsberg's test. Now let us see our last reaction. Of amines, which is electrophilic substitution reaction. Now you know that NH2 group क्या होता है, बहुत ही activating group होता है and it activates ortho and para positions. Why? ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में जाएगा और उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस बिकम एक्टिवेटेड. नाउ अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो व्हाट वी गेट ए वाइट पीपीटी ऑफ 246 ट्राइब्रोमोएनिलीन. यहाँ पे दिस इज व्हाट, कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन. तो जो एमीन है वो इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है. लेकिन अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं. ओके, व्हाट वी डू, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन. नाउ सी इट इज रिटन हियर व्हाट वी आर डूइंग हियर. इसमें जो एनिलीन ग्रुप है पहले उसका हम एसिटाइलेशन कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे और हमें एसिटानिलाइड मिलेगा. नाउ इसका हम फिर से ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमें पैरा प्रोडक्ट मिलेगा एंड फाइनल हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट. इसमें क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमें चाहिए. नाउ अब ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये इतना रिएक्टिव नहीं होता. सी एज यू कैन सी, जो हमारे पास ये कंपाउंड बना इसमें क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचता है, तो जो नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतना अवेलेबल नहीं होता रिंग में जाने के लिए. दैट इज़ वाई इसमें क्या हमें मिलता है, खाली पैरा प्रोडक्ट मिलता है. अब ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये जो ग्रुप है बल्कि ग्रुप होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है. दैट इज वाई हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, 4-ब्रोमोएनिलीन विच इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. और ये हम कैसे बनाते हैं, बाय एसिटाइलेशन ऑफ एमीन.
So this was bromination, first electrophilic substitution reaction. Now let us see nitration. अगर आप नाइट्रेशन देखो तो इफ़ यू सी द रिएक्शन व्हाट यू विल सी, ये वाला क्या है, पैरा प्रोडक्ट है, ये क्या है, मेटा, अब और ये ऑर्थो। अब हमें तीनों प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं, मेटा प्रोडक्ट कहाँ से बन रहा है। अगर आप देखो नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड क्या बनता है, एनिलीनियम आयन, दिस इज नोन एज एनिलीनियम आयन। अब ये एनिलीनियम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वाली वीडियो में, मेटा डायरेक्टिंग होता है। दैट इज़ वाई हमें नाइट्रेशन करने पर मेटा डेरिवेटिव भी मिलता है। सो व्हाट यू हैव टू राइट, अगर ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन आए तो जो एनिलीनियम आयन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग tendency, so it withdraws electron from ortho and para position and hence meta position becomes electron rich. Now अगर यही इसमें भी अब हमें ब्रोमिनेशन के जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव नाइट्रेशन करानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, एनहाइड्राइड से कराएंगे जिससे एसिटानालाइड मिलेगा, फिर हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे जिससे हमें पैरा नाइट्रो एसिटानालाइड मिलेगा, फिर हम उसका फाइनल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट रिएक्शन which is sulfonation. See children, aniline reacts with concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate, which on heating with sulfuric acid at 452-473 Kelvin produces para-aminobenzene sulfonic acid, commonly known as sulfonilic acid, as the major product. Okay, हम aniline का क्या करा रहे हैं, सल्फोनेशन करा रहे हैं। पहले हमें क्या मिलता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ओके, जिसको हम हीट करते हैं तो हमें सल्फानिलिक एसिड मिलता है। नाउ ये सल्फानिलिक एसिड क्या है बच्चे, ये आप देखो ये वाला हाइड्रोजन इधर मूव कर जाता है, सो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। दिस इज ज्विटर आयन किसे बोलते हैं, बाईपोलर आयन, जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ओके, सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पर ये वाला H इधर शिफ्ट हो जाता है तो NH3 प्लस और SO3 माइनस बन जाता है। सो सल्फोनिलिक एसिड एक्ट्स इज अ ज्विटर आयन। ओके, it will be present in the form of zwitter ion. Now see, इसमें जो लास्ट पार्ट रिटर्न है NCERT में, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, why? सो एनिलीन आपको पता है एक बेस है, ओके, एनिलीन इज ए बेस, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हाट, क्या है, दिस बेस कंबाइंस विद दिस टू फॉर्म ए सॉल्ट, ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, एक लुईस एसिड है, तो ये एसिड और ये बेस कंबाइन करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। Now due to this, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence acts as a strong deactivating group for further reaction. So this is a reasoning question. Okay, this is a reasoning question कि aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. Why? Because what you can write is that जो aniline है, वन सेकेंड, जो एनिलीन होता है, दिस इज अवर एनिलीन NH2, ये क्या करता है, AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि ये क्या है, एक बेस है, दिस इज अ बेस और दिस इज अ लुईस एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, C6H5 NH2 प्लस और AlCl3 माइनस। दैट इज वाई ये क्या है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कांट ऑकर बिकॉज जो इलेक्ट्रोफाइल है इट कैन नॉट अप्रोच द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ओके, आई होप ये सारी रिएक्शंस आपको क्लियर होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने 2-3 टेस्ट पढ़े, पहला टेस्ट था आइसोसाइनाइड टेस्ट, या इसको हम कार्बल एमीन टेस्ट भी बोलते हैं,
ये आपको याद रखना है। फिर हमने देखा था जो सेकंड टेस्ट इसके बाद नाइट्रस एसिड के साथ, वो भी आपको याद रखना है। फिर आपका हिंसबर्ग टेस्ट आपको याद रखना है। और ये सारे टेस्ट आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल चूज़ कि आपको कौन सा टेस्ट लिखना है। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पर हमारा एमीन वाला पार्ट ओवर हो गया और इसके बाद वाला पार्ट डाइजोनियम सॉल्ट्स वाला डिलीटेड है। सो अवर दिस चैप्टर इज ऑल्सो completed. Thank you for watching the video.